नहीं, बीच में नहीं आया। पता नहीं, ये लगता है कि इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं हो गई कि हम लोग मतलब 60 से ऊपर वाले ही सारे होने चाहिए। कुछ मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि वो है। अरे मैं भी हूँ, मैं 45 साल का बंदा यहाँ बैठा हूँ, आप 60 से ऊपर की क्या बातें करते हो जी। 45 साल वाला तो कोई नहीं है, मगर बात है सारे ही 60 के ऊपर होने हैं। जोशना जी है, बात सिर्फ यही है। हाँ, जोशना जी है। चलो गुरु जी शुरू कीजिए, भगवान का नाम लेके। धन्यवाद साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले नमस्कार सभी को, प्रणाम मेरा। और भगवान का नाम लेकर, लॉर्ड कृष्णा का नाम लेकर, ओम का नाम लेकर हम शुरू करते हैं आज का अपना जो विषय है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट chapter 17. We have finished till chapter 16. So this is the last but one chapter of Gita. और ये चैप्टर भी, ऑफ कोर्स एवरी चैप्टर ऑफ गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This also is one of the most important chapters. और as I said before, every chapter has a reference to the previous chapter. जो chapter 16 के अंदर we have seen that Lord Krishna first explained what are the divine qualities and what are the demonic qualities. After he explained that, in the last shloka, what he said was that with reference to what is to be done and what is not to be done, or what is right or what is wrong, with reference to that, what is the means of knowing, और जो भी अपने मनमाने ढंग से काम करता है या कोई foolishly follows his own impulses of the body or and the mind, and he cannot achieve, I mean, the purpose for which he has been doing his action or his rituals. So Arjuna, I mean, basically Lord Krishna recommended in the last verse that we should follow the scriptures, whatever is written in the scriptures. So if you do any ritual or any action without following the scriptures, then the purpose is not solved. So this, of course, created a doubt in the mind of Arjun as to what happens if a person unknowingly does not do what is required to be done as per the scriptures. When we say what is to be done as per the scriptures, any action or any ritual, any action is also a ritual basically, any yajna, anything, whatever you do, if it is not as per the writing in the scriptures, so what will happen? This is a doubt which came to Arjuna's mind, and that's why the chapter 17 begins with Arjuna's question. And जो शीर्षक है चैप्टर 17 का, वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग. 3 types of Shraddha basically. So that's what is going to be explained in this chapter. तो श्लोक फर्स्ट में पहले अर्जुन का प्रश्न है. अर्जुन भगवान से पूछता है, प्लीज टेल मी, if a person performs an action or a ritual which is not according to what is stipulated in the scriptures but still worships with devotion and faith, वो फिर भी पूरी श्रद्धा से कोई भी रिचुअल करता है या अपना धर्म भी, अपना अपना कर्तव्य भी बड़े फेथ के साथ निभाता है, बट इट मे नॉट बी, और अननोइंगली ही डज नॉट नो व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, तो उनकी जो श्रद्धा है वो वास्तव में किस प्रकार की श्रद्धा है? वो पूछते हैं, क्या वो राजसी है या सात्विकी है या तामसी है? सो दिस क्वेश्चन ऑफ अर्जुना इज वेरी वेरी relevant question, very very pertinent question, because Arjuna knew that a common man, because he asked this question not only on his own behalf, he asked the question on behalf of the mankind. And we also know that for a common man, we do not know the rules and regulations given in our scriptures properly. And even if we study the scriptures, sometimes we don't understand the meaning correctly. And
so despite the lack of knowledge, but we still worship or still do our work, whatever, with full faith and devotion. So Arjuna's curiosity is that if a man performs his duties with faith and devotion, without knowing the exact method as per scriptures, can he achieve supreme peace? Can he achieve liberation, moksha? So this is for the basically question relevant for the whole society. And we know that the human beings have been given a choice, a faculty of choice. We have the option to choose right or wrong. But all of us has been given a common sense and we to know what is right and what is wrong. और ये जो राइट और रॉन्ग है वो इस संसार में हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए एक समान है, और इसे ही धर्म कहा जाता है, और यही हमारा सनातन धर्म है। यह जो ज्ञान है ये हमें किसी शिक्षा से प्राप्त नहीं होता, दैट वी डू एनी एजुकेशन, वी अचीव एनी डिग्री एंड वी कम टू नो अबाउट दिस नॉलेज। जैसे एवरीबडी नोज दैट एक कोई जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे गिरती है। एक बंदर के बच्चे को भी पता है, और वो इसीलिए अपनी माँ के पेट से चिपका रहता है। जब उसकी माँ उछलती कूदती रहती है, उसको भी पता है कि अगर मैं माँ का पेट छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, और वो बड़े आराम से fearlessly he keeps on jumping along with his mother. So ये जो लॉ है, what is right and what is wrong, it is a universal law. It's not that it's only applicable to us in India. It is applicable in the whole universe. It is true for everyone. It is not a man-made law. It is a law made by God, and God is only one for everybody. Now, a man-made law can be different. The like law of taxation is different in different countries. Even the law of driving, whether you will drive on the right side or the left side, is also different. But this law is same in the whole creation. Now, and whatever action we do, उसका जो result है वो आपको मिलेगा ही. No one can escape from the result of that action. You can always avoid the sight of a traffic police officer and jump a red light and not get caught. But the result will come in some form. तो ये जो है एक नेचुरल लॉ है, जो भी अभी भगवान बताने जा रहे हैं, कि यह जानते फिर भी उसके बाद भी क्या होता है कि हमें पता है, एटलीस्ट आवर कॉमन सेंस टेल्स अस कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है. इसके बावजूद भी वी समहाउ knowingly or unknowingly do some wrong work. Everybody knows that it is not good to hurt anybody, but still people indulge in unlawful and illegal activities. They know what they are getting by doing some wrong means, but they do not know what the result they will get. एक thief है, उसको पता है कि मैं अगर ये धन चुराता हूं तो what he is getting, but what result he will get out of it. He may be getting a temporary happiness, temporary sukh, but in the long run, what result he will get, that he does not know. And for that, our scriptures are our pramana. They tell us what is the result of a wrong action, what type of wrong action, depending upon how much, to what extent it is, the result we come to know through our scriptures. So, this law of karma, what is this law is called law of karma, basically. And it will produce an unseen result for every action. So only scriptures can tell us what is the result. तो अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और वो अभी डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं उसको. पहले वो श्लोक 2, 3 और 4 में भगवान वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा का, कि व्हाट इज श्रद्धा. क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि जो श्रद्धा से काम करता है, श्रद्धा से कोई भी रिचुअल करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है. तो भगवान पहले श्रद्धा का वर्णन करते हैं कि श्रद्धा क्या है.
तो श्लोक 2 में पहले कह रहे हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कह रहे हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न with an innate faith. Shraddha is an innate called in basically the meaning is innate faith. Everybody is born with Shraddha, which is a innate faith. जिसका बोलते हैं हम उसका जो एक वास्तविक नेचर क्या है उसका बेसिकली। एंड दिस फेथ इज ऑफ 3 kinds: सात्विक, रासिक एंड तामसिक. एंड ही tells Arjuna that you listen from me what are these three types of Shraddha, 3 types of faith. श्रद्धा को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि श्रद्धा है क्या. इट इज नॉट एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इन फैक्ट इट इज विद इन योर माइंड, इट इज योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, योर वैल्यू स्ट्रक्चर, बेसिकली योर मोरल वैल्यूज, योर प्रायोरिटीज इन लाइफ. यू मे कॉल इट फेथ, you may call it belief, but Shraddha is little different. It is much more than that, in fact. It is your whole personality which is called Shraddha. आपका जीवन के प्रति क्या रवैया है, आप अपने शरीर, आपका खान पान, आपका धन के प्रति, परिवार के प्रति, भक्ति के प्रति या भगवान के प्रति क्या रवैया है, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपकी श्रद्धा के अंदर आ जाता है. आपने कई बार देखा होगा, आपकी श्रद्धा अगर किसी भी गुरु में है, आप किसी को गुरु मानते हैं, तो आप अपने घर में उसकी फोटो लगा लेते हैं, तो उससे आपकी श्रद्धा का पता चल जाता है कि आपकी श्रद्धा क्या है. कोई किसी पॉलिटिकल लीडर्स की फोटो अपने घर में लगा के रखता है, उसकी श्रद्धा उस पॉलिटिकल लीडर में है. तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वो आदमी काम करता है, कोई भी. सो जो श्रद्धा बेसिकली इसको हम आस्था भी कह सकते हैं. संस्कृत में इसका एक मीनिंग और भी है कि इसको हम आस्था भी कह सकते हैं. और कई लोग कहते हैं नहीं जी, मैं विश्वास नहीं करता, मैं श्रद्धा, मेरे में कोई फेथ नहीं है, आई डोंट बिलीव इन गॉड. बट उनमें भी फेथ है. दे मे नॉट बिलीव इन गॉड बिकॉज दे से वी कैन नॉट सी गॉड, बट एट लीस्ट दे हैव ए ट्रस्ट और दे हैव ए बिलीव दैट their eyes can see. If he believes that whatever eyes cannot see, that thing does not exist. तो श्रद्धा जो है कि उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि that person also has a faith, he also has a belief. तो एक ये हर एक में श्रद्धा होगी, चाहे आप भगवान में विश्वास करें या ना करें, but he also has a. तो this is the basic meaning of श्रद्धा and Vedanta. I told you is what is in our Shastras, what is in our Vedas. तो भगवान अभी श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक 3 में कह रहे हैं, हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा, जो श्रद्धा है ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सत्वा अनुरूपा भवति, इज इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल डिस्पोजिशन. ये हर एक का अपना अपना बाय बर्थ एक नेचुरल डिस्पोजिशन है. द श्रद्धा इज अकॉर्डिंग टू दैट. And then he says, Ayam Shraddha Maya, Ayam Purusha. Every person is endowed with Shraddha by birth. That's why now Bhagavan is telling this. Ya yat Shraddha sa eva sa. Whatever the nature of their faith, that is verily they are. That is, as is his faith, so is his nature. जैसा उसका विश्वास होगा, जैसी उसकी श्रद्धा होगी, उसका स्वभाव भी वैसा ही होगा. So it is type of our faith, type of our Shraddha, which determines the direction of our life. और हमारी जो श्रद्धा की जो गुणवत्ता है, वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों पर निर्भर करती है. जो हमारी, जैसे कहते हैं ना कि बाय बर्थ है, so it depends upon what your sanskaras gathered or carried forward from your previous birth. So and the thoughts, our thoughts are also governed by what type of Shraddha you have. And if those who believe in this, that fame, जिनको चाहिए कि हमको प्रशंसा चाहिए, हमको fame चाहिए, they will always dedicate their time and energy in political work. They will like to lead a political life so that they can
get fame. People who believe only money is, their faith is only in money, that money is everything, they will spend their life in accumulating wealth. So their work or their lifestyle will also depend upon what type of Shraddha, what type of innate nature, what he has. So अब आगे श्लोकों में भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक 4 में भगवान कह रहे हैं कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्शिप, अब ये भगवान श्लोक 4 में बता रहे हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्शिप। यजन्ते सात्विका देवान, वो कहते हैं जिनमें सात्विक गुण है वे देवों को पूजते हैं। और यक्ष रक्षांसी राजसा, जिनमें रजोगुण प्रधान है, वे अपने महत्वाकांक्षी और क्रियाशील स्वभाव के कारण यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष कौन है? दे आर बेसिकली सेमी सेलेस्टियल गॉड्स हु बेसिकली हैव पावर एंड वेल्थ। और राक्षस तो आपको पता ही है किनको राक्षस बोला जाता है। देन ही सेज प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना, तथा जो तामसिक स्वभाव वाले हैं वे मनुष्य निम्न स्तर के जो विषय अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, जो उनके नीचे की स्तर की जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया। इसके बाद श्लोक 5-6 में भगवान आसुरी स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जो श्रद्धा है वो क्या है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, ये जना, कुछ लोग दंभ अहंकार संयुक्ता, हु आर मोटिवेटेड बाय एरोगेंस एंड प्राइड, घोरम तप तपयन्ते, वो कठोर तपस्या करते हैं जैसे रावण ने की थी, तो कुंभकर्ण ने की थी, मेघनाथ ने की थी, वो कठोर तपस्या करते हैं। शास्त्र विहितम, जो शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की आज्ञा के अनुसार नहीं होते, बट दे आर मोटिवेटेड बाय काम राग बल अन्विता, वो बल्कि अपनी काम वासना से प्रेरित होकर वो घोर तपस्या, कठोर तपस्या की जाती है। देयर रिलीजियस डिसिप्लिन्स आर ड्रिवन बाय देयर स्ट्रॉन्ग पैशंस एंड लस्ट। जो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं उनको बोला गया है अचेतसा। ये जो such people who in the name of spirituality, they are basically अज्ञानी, in the name of spirituality कर्षयन्ते शरीर स्थम भूत ग्रामम, वो केवल they perform severe rituals like lying on a bed of thorns, walking barefoot to the temple of Mata Vaishno Devi, fasting for long periods of time, etc. तो उनकी ऐसी आस्था जो होती है, ऐसा करने से उनको लगता है that I will get some spiritual powers, due to that I can fulfill my desires. And in this way, by performing such penances, they not only hurt their body, but Bhagavan says they also disrespect the soul residing within, and also the Supreme Soul, who is also the Paramatma, is also residing within. So तान विद्धि आसुर निश्चयान, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वे निश्चय पूर्वक आसुरी स्वभाव वालों की श्रद्धा है। सो सच फेथ इज डेफिनेटली ऑफ डोमिनिक नेचर पीपल विच इज ड्यू टू इग्नोरेंस। अब इस प्रकार श्रद्धा का वर्णन करने के पश्चात 3 प्रकार की श्रद्धा और आसुरी स्वभाव वालों की क्या श्रद्धा होती है, उसके भगवान जो है अगले श्लोक 7 में कहते हैं कि आहार है तू अपि सर्वस्व, जो आहार है वास्तव में जो भोजन है वो भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ तप और दान है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, तुम उनके भेद मेरे से सुनो। तो भगवान श्लोक 7 में अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अब तुमको भोजन, यज्ञ, तप और दान जो है वो 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब मैं इन सब के जो भेद हैं गुणों के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, और आपको इसका गुणों का क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, चैप्टर 14 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया था।
कि आपको इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया था कि सात्विक गुण क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। तो जस्ट ए स्मॉल रिकैप ऑन दैट। जो तमस गुण है, सबसे पहले, इट लीड्स टू इग्नोरेंस, इट लीड्स टू लेजीनेस एंड स्लैकनेस। जो रजोगुण है, इट लीड्स टू अननेसेसरी एक्शन टू फुलफिल डिजायर्स। और जो सत्व गुण है, इट लीड्स टू द पीसफुल ऑफ माइंड एंड डेवलप बेसिकली ए ह्यूमन वर्च्यूज, द मॉरल वैल्यूज विद इन यू। तो भगवान का ये सब बताने का पर्पस था कि ताकि आप जो है अपने अंदर ये ह्यूमन वैल्यू, सात्विक कल्चर जो है कि पैदा करें। यू डेवलप sattvic gun within you, develop moral values so that you can lead in your life, make a spiritual progress and lead you to getting this liberation, getting this knowledge. तो ये सारा पर्पस था। अब इसी के बारे में भगवान आगे श्लोकों में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले श्लोक 8, 9 और 10 में भगवान 3 प्रकार के भोजन का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 8 में भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक लोग हैं, आहारा सात्विक प्रिया, persons of sattvic guna, they prefer these foods. Which are these foods? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, that promote longevity. आयु, virtue, सत्व, physical strength and health, sukh, priti, vivardhana, happiness and joy. They promote also happiness and joy. Rasya, snigdha, stira, hridya. And what are these sattvic foods? Which are juicy, which are smooth, nutritious and naturally delicious. तो भगवान ने सात्विक फूड की बहुत एक जनरल डेफिनेशन दे दी है कि ये सात्विक फूड कहा जाता है, विच आर जूसी, विच आर डिलीशियस, न्यूट्रिशियस, विच आर स्मूथ। देन इन नेक्स्ट वर्स 9 भगवान सेज द फूड्स विच आर वेरी बिटर, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, जो बहुत बिटर हैं, सावर हैं, टू साल्टी और टू हॉट हैं, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहिना, दे आर पंजेंट, दे आर ड्राई एंड कॉजेज बर्निंग इन द स्टमक। राजसस्य इष्ट्वा आर लाइक्ड बाय पीपल हैविंग रासिक नेचर एंड दिस टाइप ऑफ फूड दुख, शोक, आमय प्रदा, दे कॉज सोरो, एंजाइटी एंड डिसीजेस। Then in next verse 10 Bhagavan tells about tamasic food. So he says the foods which are yat yamam gat rasam, इसका मतलब है which are stale, without any juice or which are tasteless. Uti paryushitam chayat, and which are putrid, rotten, impure. Uchishtam api cha amedhyam, which are unripe and unfit for health. Tamas priyam, they are liked by the people having tamasic nature. यहाँ पर भगवान ने एक वर्ड यूज किया, यात यामम। यात यामम जो है हमारी काल गणना के अनुसार, प्राचीन पद्धति के अनुसार, एक दिन को 8 यामों में बांटा गया है और प्रति याम जो है 3 घंटे का होता है। तो इसलिए वेदों में कहा गया है कि जो फूड 3 घंटे पहले पकाया गया है वह फूड यात यामम कहलाता है, वो स्टेल है, वो खाने योग्य नहीं होता है। तो 3 घंटे से पहले पका हुआ जो खाना है वो एक तामसिक फूड बताया गया है। अब भोजन के बारे में बताने के बाद अब भगवान श्लोक 11 से 13 में 3 टाइप्स ऑफ वर्शिप, 3 टाइप्स ऑफ यज्ञ, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले कहते हैं अफल एकांक्षी भी यज्ञ है, जो यज्ञ, जो कोई भी रिचुअल किसी भी फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, मीनिंग दैट एनी चैरिटेबल और एनी बेनिफिशिएंट एक्ट्स which are performed without expectation of the rewards for that. Vidhi dhrishte ya ijjate, which are done also according to the scriptural rules. Yashtvayam ev iti, and considering them as a matter of duty, that it is for the human welfare or human किसी दूसरे के लाभ के लिए किया जाता है। मन समाधाय, और मन में फर्म कन्विक्शन के साथ, पूरे विश्वास के साथ किया जाता है। वह जो यज्ञ है, वे जो रिचुअल्स आप कर रहे हैं, वो सात्विक रिचुअल्स कहे जाते हैं।
And then in verse 12 he says, भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अभिसंधाय तु फलम, जो यज्ञ अपने किसी कामना से प्रेरित होकर और फल की लालसा के लिए, दंभ अर्थम अपि च एव, अथवा केवल दिखावे के लिए या सत्कार पाने के उद्देश्य से यत इज्जते किए जाते हैं, तम यज्ञम विद्धि राजसम, उन यज्ञ को तुम राजस यज्ञ जानो. Then verse 13, विधिहीनम, those rituals which are devoid of any injunctions of the scriptures, which जो बिना किसी विधि के, जो शास्त्रों में विधि बताई गई है, बिना किसी विधि के, अशिष्ट अन्नम, और उसमें कोई फूड भी ऑफर नहीं किया जाता. देन मंत्रहीनम, जिसमें किसी मंत्रों का अच्छी तरह से और सही ढंग से उच्चारण नहीं होता है. अदक्षिणम, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती है. श्रद्धा विरहितम, और विच आर विदाउट हैविंग फेथ इन गॉड. तो इस प्रकार के जो यज्ञ हैं वो तामस यज्ञ कहे जाते हैं. अब आगे श्लोक 14 से 16 में भगवान तपों का वर्णन कर रहे हैं. इन 14 से 16 में भगवान कहते हैं कि जो तप है वो 3 तरह से किए जा सकते हैं. आप शरीर से कर सकते हैं, अपनी वाणी से भी कर सकते हैं, या अपने मन से भी कर सकते हैं. तो ये जो तप है, मन, शरीर, मन और वाणी के जो तप है, वो क्या क्या तप हैं, इसके बारे में भगवान 14 से 16 में बता रहे हैं. तप का अर्थ क्या है? बेसिकली तप का कई लोग सोचते हैं वो बड़ी कठोर तपस्या, जैसे एक टांग पर खड़े होकर करना, या अपना लेट कर किसी कांटों के उसके ऊपर बैठना, या जंगल में चले जाना, इस तरह का जो तप करना है, लोग सोचते हैं ये इसको तप बोला जाता है. पर ऐसा नहीं है. बेसिकली तप का जो मीनिंग है वो ये है, विच कैन प्योरीफाई योर अंतःकरण, प्योरीफाई योर माइंड एंड इंटेलेक्ट. एनी एक्शन, एनी रिचुअल विच कैन हेल्प यू टू प्योरीफाई योर माइंड, दैट इज कॉल्ड ए तप. अब अगर जैसे सोने को अगर परखना है, सोने को आप आग में रखेंगे तो सोना अलग हो जाएगा, उसकी जो इम्प्योरिटी हैं अलग हो जाएंगी, सोने की चमक आ जाएगी. ऐसे ही अगर जो तप करते हैं, तप में जो आपके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, राग और द्वेष की इम्प्योरिटीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और आप में माइंड जब प्योर होता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जो चमक है, वो जो ब्रिलियंस है फेस के ऊपर, वो आ जाएगी. तो इसको बेसिकली तप जो है कि कहा जाता है. तो इसके बारे में भगवान अभी श्लोक 14 में सबसे पहले जो शरीर के तप हैं, जो बॉडी के जो तप हैं, इसका वर्णन करते हैं. तो बॉडी के शरीर के साथ कौन कौन से तप भगवान ने बताए हैं? पहले कह रहे हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता की, अपने गुरु की, आचार्य की, या किसी ज्ञानी की, अपने से बड़ों की, उनकी आदर सत्कार, उनकी पूजा, ये एक शरीर का तप बताया गया है. देन शौचम, शौचम का अर्थ होता है मेंटल प्योरिटी, नॉट एक्सटर्नल प्योरिटी, बल्कि मेंटल प्योरिटी, दैट यू रिजेक्ट ऑल सेंसुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय डिवोशन टू गॉड. तो इसके लिए आप जो भी तप करते हैं कि अपनी मन की शुद्धता के लिए, विच कैन प्योरीफाई योर माइंड, तो दैट इज वन सेकेंड टाइप ऑफ तप. थर्ड इज आर्जवम. आर्जवम इज कल्टिवेटिंग हार्मनी बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. बड़ा सरल जीवन जीना, आपके बोलने में, काम करने में और शब्दों में एक तालमेल होना चाहिए. ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बट स्टिल आप उन पर खुद उनके ऊपर आचरण नहीं करते हैं, तो वो गलत है. जो तप है बेसिकली कि आप अपने आचरण में सरलता लेकर आए, ताकि आपके जो थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, या डीड्स हैं, उनमें तालमेल है. दैट इज बेसिकली आर्जवम. द नंबर 4th he has told is brahmcharyam, practice celibacy. And celibacy also, not only bodily celibacy, you have to practice celibacy by thought, word and deed. And this is the highest tap basically. This is also told very in detail in our Vedas. What this basically means? This means is freedom from all lustful thoughts, passions and acts. So it is like a main switch. Brahmacharya, celibacy
is like a main switch for the entire illumination of your life. Then fifth is ahimsa. Ahimsa is again non-injury to any creature by thoughts, words and deeds. And again, meaning of ahimsa is dependent upon the situation, dependent upon the circumstances. तो ये भगवान ने इस तरह के जो 5 तप हैं वो बॉडी के लिए बतलाए हैं। इनके अलावा और किसी कोई तप भगवान ने किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है, तो ये तप हैं बॉडी के। श्लोक 15 में भगवान वाणी के तप बताते हैं। वाणी के तपों के अंदर भगवान ने यहाँ पर 4 प्रकार के तप बताए हैं। पहला है अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे शब्द जो किसी के लिए दुख का कारण नहीं बनते, विच डज नॉट हर्ट एनीबडी। सत्यम, सेकेंड इज इट शुड बी ट्रूथफुल, जो भी आप अपनी वाणी से बोलते हैं इट हैज टू बी ट्रूथफुल। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूथफुल? डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट यू हैव हर्ड, seen or read. This is called truthfulness. Then third is priyahitam, that it should be beneficial to everyone, जिससे किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। और फोर्थ इज स्वाध्याय अभ्यसनम, अपनी वाणी से आपको प्रैक्टिस, स्टडी ऑफ शास्त्रास, वेदास, उपनिषद एंड पुराणास एवरी डे। So Swadhyaya basically is like the wind to the fire of meditation. बिना स्वाध्याय के आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। So these 4 tapas have been described for your speech, for your वाणी। श्लोक 16 में भगवान मन के तप बता रहे हैं। पहला है मन है प्रसाद है। मन है प्रसाद मीन्स कीपिंग द माइंड इन वेरी वेरी calm and serene state. माइंड हमेशा इक्वेनिमस रहना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द एम? टू प्रिवेंट द माइंड, दिस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टेकिंग रूट इन योर माइंड, इन योर लाइफ। सो एवरी थॉट ऑन विच वी फोकस आवर अटेंशन विल ब्रिंग रिजल्ट्स, एंड एवरी थॉट शेप्स आवर डेस्टिनी। सो दैट इज वाई रिमूविंग द माइंड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड ड्वेलिंग ऑन पॉजिटिव थॉट्स इज कंसिडर्ड ए तप। ये भी एक तप है कि कैसे अपने माइंड के अंदर आपने पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं और नेगेटिव थॉट्स को भगाना है। तो ये एक मन का आपके लिए तप है। और आपको याद होगा कि श्लोक 6 अध्याय 6 में भगवान ने कहा था कि मन ही अपना मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। अगर आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो ऐसा मन आपका मित्र है, नेगेटिव थॉट्स होंगे तो वही आपका शत्रु बन जाता है। तो इसलिए मन का जो एक तप है वो सबसे बड़ा तप यही है कि मन प्रसाद है। सेकंड इज सौम्यंतम। सौम्यत्वम मीन्स जेंटलनेस, दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एन इंप्रेशन ऑफ जॉय एंड लव ऑन योर फेस, रेडिएटिंग दैट इनडिफाइनेबल जॉय। आपके फेस से पता लग जाएगा, आपके फेस से ही एकदम जो रेडिएशन एक जो आएगी वो सबको प्रसन्न कर देगी। देन थर्ड इज मौनम, साइलेंस। अब मौन भी जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि आपने के जो बाहरी साउंड है, आउटर साउंड को रोकना, और एक होता है अपने मन के अंदर शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको हर बात में कुछ ना कुछ बोलना है। तो मन की शांति जो है इसको मौनम का मौन तब बोला गया है कि आप सिर्फ जो है कि स्टॉपिंग, अपने कान बंद कर लो और आपको सुनाई नहीं देगा तो आप बोलेंगे कुछ नहीं। नो, दिस इज नॉट द तप ऑफ द मन बेसिकली। सो restraint of speech, the meaning is basically that restrain your speech only when it is necessary. So that is basically जो तप है वो बताया गया है। एंड फोर्थ इज आत्म विनिग्रह, कंट्रोल ऑन द माइंड, मन पर संयम। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द तप। अगर कोई मन पर संयम करना सीख जाए, मन तो कहते हैं ना बड़ा चंचल है, ये तो जो है कि हवा से भी तेज भागता है और एक मिनटों में कहाँ से कहाँ और लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। तो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। तो इसको कैसे कर, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो शब्द बन जाते हैं।
और कोई भी काम करने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दें और आदत बनने से पहले अपने कार्यों पर नजर रखें। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वही आपका चरित्र बन जाती है। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि वही आपकी तकदीर बन जाती है। तो अपने मन को इस तरह से आपको कंट्रोल करना है। यू हैव टू कीप योर हैबिट्स, योर करेक्टर, योर थॉट्स, एवरीथिंग अंडर चेक। एंड द फिफ्थ वन इज टोल्ड एज भाव संशुद्धि, प्योरिटी ऑफ हार्ट। कि अपने दिल में कोई भी गलत भावना, कोई भी गलत भाव नहीं होना चाहिए। सो दैट इज ऑल दिस 5 आर मन के तप। ये सब तप बताने के बाद अब भगवान श्लोक 17 में सात्विक तप किसको बोलते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तप है तत् त्रिविधाम। जो ऊपर मैंने कहे हैं कि 3 तरह के जो तप हैं, शरीर मन और वाणी वाले जो तप हैं, नरई श्रद्धया परया, when they are observed by the person with supreme faith and determination। पूरे श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ वो जो तप जो शरीर मन और वाणी के जो बताए हैं वो किए जाते हैं। अफल कांक्षी भी युक्त है ये, which are done in a selfless manner without attachment to the rewards and without expecting any result। तत्पम सात्विकम परिचक्षते। उन तप को सात्विक तप कहा जाता है। तो जो भी शरीर मन और वाणी के तप ऊपर भगवान ने बतलाए पिछले श्लोकों में, उनको अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना किसी फल की कामना के करते हैं तो वो सात्विक तप है। तो इस सात्विक तप के लिए क्या है 3 शर्तें? अटूट श्रद्धा, देन सेल्फलेस मैनर, एंड थर्ड इज विदाउट अटैचमेंट टू द रिवार्ड्स एंड माइंड कनेक्टेड ऑल द टाइम टू द गॉड। तो इस तरह से जो तप किए जाते हैं वे सात्विक तप कहलाते हैं। देन वर्ष 18 में वो रास्तिक तप के बारे में बता रहे हैं कि जो तप सत्कार मान पूजा अर्थम, आदर सम्मान और अपनी पूजा कराने के इरादे से, दंभेन च एव, तथा दिखावे के लिए किए जाते हैं, तत्प्रोक्तम राजसम, उन्हें रास्तिक तप कहा जाता है। चलम अध्रुवम, द रिजल्ट ऑफ सच tapas performed with these feelings is uncertain, is momentary and temporary। उनका जो फल मिलेगा आपको वो टेम्परेरी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। देन वर्स 19 में भगवान तामसिक तप के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यत तप है क्रियते, वो जो तप है विच आर परफॉर्म्ड मूढ़ ग्रहण विद फुलिशनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, आत्मन है पीढ़िया, बाई टॉर्चरिंग वंस ओन माइंड स्पीच एंड बॉडी, परस्य उत्सादन अर्थम वा, और टू हार्म अदर्स, ततः तामसम उदाहतम। वो जो तप है वो तामस तप कहे जाते हैं। अगर आप किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कोई भी तप करते हैं तो वो तामसिक तप कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इन तीनों प्रकार के तपों का वर्णन किया। तपों का वर्णन करने के पश्चात अब श्लोक 20, 21 और 22 में भगवान 3 प्रकार के दान का वर्णन करते हैं। पहले आपको याद होगा श्लोक 7 में कहा था भोजन, यज्ञ, तप और दान ये 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी का वर्णन 1 बाय 1 भगवान कर रहे हैं। अभी वो 3 प्रकार के दान जो चैरिटी है उसका वर्णन करते हैं। श्लोक 20 में भगवान कह रहे हैं यत दानम, जो दान दीयते अनुपकारिणे, बिना किसी प्रतिफल की कामना के अथवा बिना किसी उपकार की अपेक्षा के किए जाते हैं, दिया जाता है। दातव्यम इति, केवल इस भाव से कि यह दान देना मेरा कर्तव्य है। देशे काले च पात्रे च, तथा जो उचित स्थान पर और उचित समय पर और योग्य पात्र को दिया जाता है, तत्दानम सात्विकम स्मृतम, वह दान सात्विकी दान कहा जाता है। तो इट इज अ चैरिटी, सात्विक दान is a charity which is given for the service of mankind to one who is really deserving, who is hungry or orphan or a disabled, and without, most importantly, without expecting any favor in return from them।
आप किसी को दान देते हैं एंड यू एक्सपेक्ट मैं इस पार्टी को इतना दान दे रहा हूँ, इतना फंड दे रहा हूँ, मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा बाद में, तो वो सात्विक दान नहीं कहा जाता। तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, सो इस प्रकार का जो दान है वो आपको अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। इट मे नॉट प्रूव टू बी बेनिफिशियल इनिशियली और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, but ultimately in long term it will prove to be very very beneficial for you. Then in verse 21 भगवान कह रहे हैं तू तत् दानम, परंतु वह दान, यत जो प्रति उपकार अर्थम, बदले में किसी की मदद पाने के लिए, फलम उद्देश्य व पुनः, अथवा भविष्य में अपने किसी लाभ को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, च परिक्लिष्टम, एंड विच आर गिवन अनविलिंगली, और जिसको देने के बाद आपको लगे यार मैं तो ये मन में आपके हो, मैं तो बेकार में दे दिया, मुझे तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो बिना किसी इसके ऐसे उसके वो दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड राजसम स्मृतम, उसे राजसी दान कहा जाता है। तो किसी भी बदले की पाने के लिए वो राजसी दान है। तो ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। देन श्लोक 22 में भगवान बता रहे हैं कि यत दानम दीयते, दैट चैरिटी, दैट दान विच इज गिवन अदेश काले, at an inappropriate place and inappropriate time, patrebhya cha, and to unworthy person like who are thieves or maybe drinkers, आपसे दान लिया और वो शराब पीने चले गए, तो असत कृतम, but and also at the same time that person does not show respect for the person who is receiving the donation. आप किसी को दान दे रहे हैं but you don't show respect to him, अवज्ञातम, और विद द इंटेंशन ऑफ रिडिकुलिंग हिम, किसी को रिडिकुल करने के लिए, चढ़ाने के लिए आपको दान दे रहे हैं, तत् तामसम उदाहरितम, ऐसा जो दान है वो तामसिक दान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम व्हेन यू गिव दान यू जस्ट थ्रो कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ बेगर्स, सो दैट इज दिस इज a disrespect to other person, so that sort of दान is considered tamasic, which does not give you the desired result. So or giving a charity to a, like all these terrorists who are killing people, they are murderers basically, if you give money to them also, that also is a तामसिक दान। तो इस प्रकार से भगवान ने ये भोजन, यज्ञ, तप और दान का जो तीन तीन प्रकार का डिटेल में किया। अब भगवान जो असली उत्तर है अर्जुन को उसके प्रश्न का वो देने जा रहे हैं। और ये जो 5 श्लोक हैं अगले 23 से लेकर 27 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आपको शायद इसके बारे में ज्ञान भी होगा पहले से ही। इसमें 3 शब्द हैं, ओम तत्सत, और ये आप सबको पता है ओम तत्सत जो शब्द है उनका क्या मीनिंग है। तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, ओम तत्सत, इनकी चर्चा करेंगे। और यही एक तरीका था भगवान को अर्जुन के प्रश्न का संक्षेप में और बड़ी सरल भाषा में उत्तर देने के लिए। सो अब जो है कि बेसिकली अर्जुन का उत्तर, प्रश्न क्या था, अब फिर दोबारा सोचिए कि he has full faith but unknowingly, or he does not have not read the scriptures, and there are some omissions and commissions basically in this way, and he performs any action or any ritual, so what result he gets, that was his basically question. So अब भगवान इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले श्लोक 23 में भगवान कह रहे हैं कि जो ओम तत्सत इति, ये जो वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं जो ओम तत्सत, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म। सो ओम तत्सत इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन गॉड, वन सुप्रीम लॉर्ड, वन ब्रह्म तत्व। ब्रह्मण त्रिविध है, ये 3-fold डेजिग्नेशन है ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। और इन्हीं शब्दों के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों के द्वारा, ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण करके ही ब्रह्मा जी ने शुरू में इस सृष्टि को क्रिएट किया था।
Om, by chanting these three words, Brahmaji created this universe in the beginning of the creation. So Om Tat Sat का जो pronunciation है, it independently and together is considered to be the symbolic expression of the supreme ultimate truth. ओम का भी अर्थ, तत् का भी अर्थ और सत का भी अर्थ. So ओम तत्सत ये तीनों शब्द completely independently also as well as together also represent one Param Brahm, one supreme reality, one supreme absolute truth. तो इन तीन शब्दों के प्रयोग की क्या विधि है, ये भगवान आगे बताने जा रहे हैं. श्लोक 24 में भगवान कह रहे हैं, द साइलेबल ओम जो है बेसिकली इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पर्सनल, द निराकार भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है, विच इज अनबॉर्न, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. सो इट इज बेसिकली निराकार ब्रह्म. ओम जो है वो निराकार ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है. सो इट इज आल्सो, ओम इज आल्सो ए प्रीमोर्डियल साउंड that pervades the entire universe. So Shri Krishna says in this verse, sloka 24, तस्मात, इसलिए ब्रह्म विधि नाम, जो वेदों को फॉलो करते हैं उनके अनुयायियों द्वारा विधान उक्ता, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट, prescribed in the scriptures, when you perform any sacred acts or rituals, Om is recited by the priest, by the whoever is performing puja, at the beginning of the Vedic mantra. Every Vedic mantra starts with Om. So they are performed by chanting Om, and this Om invokes auspiciousness. आपका जो भी रिचुअल है, जो भी आप अगर कोई काम करने से पहले भी आप ओम का ध्यान करते हैं, वो उसमें एक ऑस्पिशियसनेस लेकर आएगा. बिकॉज ओम प्योरिफाइज एवरीथिंग. इट इज सच ए सेक्रेड साउंड that just by pronouncing it, your speech gets purified, your actions get purified. So it gives life and light to every sacred act performed by a man. So any act you do, any yajna, any ritual you do, performed by chanting Om. Now next verse 25, Bhagavan will explain what is Tat. The word Tat is also supreme reality. Basically, Param Brahm again. Tat also represents Param Brahm, which is the cause of everything, who gives fruit of action. तो थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि ओम जो है निराकार ब्रह्म के बारे में था, और तत् है जो आपको कर्मों का फल देता है. बेसिकली हु इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, हु गिव्स यू द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस, उसके लिए तत् यूज किया जाता है. और जो मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, जो तत्त्वमसि जो महावाक्य है, उसमें जो तत् है वो यही वर्ड तत् है. तो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, विच इज द कॉज ऑफ द ओरिजिन, एग्जिस्टेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंड ऑल द फ्रूट ऑफ एक्शंस आर गिवन बाय हिम. इसलिए एनी यज्ञ, एनी तप और एनी चैरिटी, वट एवर यू डू, must be done solely for purifying the mind by chanting, by offering it, by chanting Om Tat Sat. जो तत् शब्द है वो कभी अकेले में नहीं बोला जाता है. It is always chanted together with Om Tat Sat. ओम आप अकेले उच्चारण कर सकते हैं, पर तत् और सत जो है वो हमेशा ओम तत्सत तीनों के साथ ही उच्चारण किया जाता है. तो श्लोक 24 में भगवान कहते हैं कि जो तत् इति, जो चांटिंग ऑफ तत्, विविधा क्रिया, वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स लाइक यज्ञ, तप, दान, क्रिया च. यज्ञ है, तप और दान आदि क्रियाओं में जब आप कोई परफॉर्म करते हैं, शुड बी डन बाय चांटिंग तत्, आर परफॉर्म्ड बाय दोज पीपल हु आर सीकिंग लिबरेशन विदाउट सीकिंग एनी रिवार्ड और मटेरियल गेन्स. तो वो तत् को ध्यान में रखते हुए, तत् का अर्थ क्या है? बेसिकली यहाँ पर परमात्मा का ही सब है, मेरा कुछ नहीं है. मैं जो कुछ भी इस यज्ञ में, इस हवन में, इस कार्य से जो कुछ भी मैं अर्पित कर रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए है. इस भाव से
जो संपन्न किए जाते हैं वो तत् उसको रिप्रेजेंट करता है. So hence the tat word is a symbol of surrendering all actions, all fruit of actions to God. So it is a symbolic representation of that I am surrendering myself, I am surrendering all my actions to God. And as I said, tat is never used alone. It is used along with the three words Om Tat Sat. Now, Bhagwan will explain the word Sat. Sat has many meanings. एंड देयरफॉर जो 26 और 27 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में भगवान सत्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे पहले श्लोक 26 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सत इति एतत्. द वर्ड सत प्रयुज्यते इज यूज्ड सत भावे टू डिनोट एटर्नल एग्जिस्टेंस. सत्य भाव में एटर्नल एग्जिस्टेंस, साधु भावे च एंड गुडनेस एंड वर्च्यू. तथा सत शब्द and also the word sat yujyate is used prashasте karmani yujyate to describe the auspicious deeds. And then verse 27 अगले श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञ तपसे दाने च स्थिति. By remaining steadfast in the performance of these actions like आप त्याग है, तपस्या है, दान है, all that is called sat, is all called sat. Chakaram ev tat arthiyam. In fact, all the karmas which are done with the sole purpose of welfare of mankind are also named as sat. तो डिफरेंट भी मीनिंग है भगवान ने यहाँ पर बताए हैं. एक्चुअली इनफैक्ट भागवतम के अंदर भी कहा गया है, यू आर नॉट ओनली द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. पर भगवान, ओ लॉर्ड, यू आर नॉट ओनली द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट यू आर आल्सो द ट्रुथ in the 3 phases of the seismic manifestation, cosmic manifestation, that is creation, maintenance, and dissolution. You are the origin of all that is true, and you are also its end. You are the essence of all truth, and you are also the eyes by which the truth is seen. So this is the definition of Sat given in Srimad Bhagavatam. तो ये सब 4 श्लोक पढ़ने के बाद ओम तत्सत शॉर्ट में क्या मीनिंग है. ओम इज बेसिकली ब्रह्म. इसके जो 2 वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओम इज ब्रह्म तत्व, तत् इज एंड दैट ब्रह्म इज सत, एटर्नल ट्रुथ. सो ओम तत्सत मीन्स ब्रह्म एंड दैट ब्रह्म इज एटर्नल ट्रुथ. इसका सेकंड वे है तत्, दैट, सत, द अल्टीमेट ट्रुथ is Om, is Brahm. So that ultimate truth is Brahm. So Om Tat Sat can be described in 2 different ways, but meaning is same basically. So Parabram Paramatma is the eternal truth. Everything else is just a shadow, mithya. It's just an illusion. जिसे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. Hence the mantras Om Tat Sat represents the highest truth in all the Vedas and scriptures. So we remember by chanting these 3 words Om Tat Sat, we remember the Supreme Lord of the universe as the creator of the universe, as the omnipresent Paramatma, and identify ourselves also with Ishwar. So in this way, remembering God and doing the rituals, all our actions, all our karmas get purified. If you do your work, do any ritual by chanting these 3 words, it gets, all your actions get purified, get the blessing of the God. So इसलिए भगवान लास्ट वर्ष जो इसका है चैप्टर 17 का, तो 28 वर्ष है, उसमें भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धया कृतम, जो बिना श्रद्धा के किया हुआ, हुतम, हुतम मीन्स यज्ञ, दत्तम मीन्स दान, तपह तप्तम चयत, एवं कठोर तप अथवा अनुष्ठान, असत इति उच्यते, वह सब असत कहलाता है. अगर आप बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के कोई भी यज्ञ, तप, दान करते हैं, वह असत है. वे न तो प्रेत्य परलोक में, च न इहि, और न ही इस संसार में,
लाभदायक सिद्ध होते हैं। So therefore, if we perform any auspicious work without faith and do it only for the show or for our own selfishness, then its results definitely will not be beneficial. So basically, but what happens if you chant these three words? क्या होता है? और जो भी आपकी ओमिशन वगैरह है वो सब की सब प्योरीफाई माफ हो जाती है। आपने श्रद्धा और विश्वास से किया, and you chant these three words Om Tat Sat, Om in the beginning, and after completing Om Tat Sat, if you have missed anything, you have misunderstood anything, if you have not followed the scriptures, those get nullified. तो इस प्रकार से जो 17वें अध्याय का जो सार है, बेसिकली perform your duties in accordance with the scriptures, having full faith and shraddha in these scriptures, in your guru, but not based on your own impressions of the mind and intellect. So basic जो मैसेज कन्वे किया गया, एडवाइस दी गई है भगवान द्वारा कि परफॉर्म योर ड्यूटीज विद फुल फेथ एंड डिवोशन, कीपिंग इन माइंड ओम तत्सत, स्टार्ट एनी एक्शन विद ओम एंड एंड इट विद ओम तत्सत। और इसीलिए हर चैप्टर के बाद जो श्लोक आता है वो ओम तत्सत से शुरू होता है। तो हम भी इसी प्रकार इस अध्याय 17 का समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। ओम तत्सत तत्सत ओम तत्सत। सभी का आपका अभिनंदन अगेन। आज हमने चैप्टर 17 को किया है और इसको कंप्लीट किया है। अभी सिर्फ एक चैप्टर 18 बाकी है, और ये सब चैप्टर 18 में भी 65 श्लोकों के बाद अर्जुन का मोह नष्ट होगा। उससे पहले भी जब चैप्टर 18 में आप देखेंगे कि अर्जुन विल स्टार्ट आस्क द सेम क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ गीता। और हमारे भी आप गीता को 10 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, 2000 बार पढ़िए, तब भी आपका मोह नष्ट नहीं हो सकता, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा, किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे ज्ञानी से इसके बारे में सुनना भी पड़ेगा, प्रवचन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और खुद के लाइफ को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका मोह नष्ट होगा। अब ये गीता, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और मैंने आई थिंक सेवरल क्लासेस भी अटेंड की हैं, एक कोर्स भी, डिटेल कोर्स भी किया है गीता के ऊपर, पर हर बार अभी भी मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है, और वो इस जन्म में तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दैट वी आर इन द पाथ अहेड। तो ये आपको एक प्रयत्न जो है वो करते रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे तो आप जो है कि मोक्ष मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब तो बहुत दूर की बातें हैं। वो सिर्फ एक आपकी जो लाइफ है, आपके जो जीवन जीने की जो कला है, इसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा, मन की शांति आपको देगा। और उसी के लिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए और आपको समझ में आए। और सिर्फ एक बार सुनने से नहीं चलेगा। अभी चैप्टर 18 है, बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें मेरे ख्याल में 4 एपिसोड के करीब लगेंगे मेरे को उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और भगवान फिर से वहाँ पर कर्म से ही शुरू करने वाले हैं, और पूरी जो कर्म की जो पूरी साइंस है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अगले उसके तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। नमस्कार। राकेश जी आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। विपिन जी, आप से शुरू कर लेते हैं प्रश्नों का, फिर आप बाकियों के प्रश्नों का भी उत्तर मतलब चर्चा करेंगे। शुरू विपिन जी आप ही करिए। प्रश्न तो कोई नहीं होता, मतलब यही है चर्चा सत्य जो ओम तत्व सत्य जो बताया है वो तो सही बात है कि जो बताया है